डन हो गया। ओके, फॉर दोज पीपल जिनको अभी भी नहीं लग रहा है कि यस हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई है, सो दोज राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट वन, फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent, find equation of tangent and normal to the curve, find equation of tangent and normal to the curve y is equal to x cube minus 2x square plus 4. Y is equal to x cube minus 2x square plus 4 at 2, 0. I repeat, find equation of tangent and normal to the curve y is equal to x cube minus 2x square plus 4 at x equal to 2, 2, 0. मिस आपने लास्ट में क्या बोला नॉर्मल टू दी के बाद में? Normal to the curve y equal to x cube minus 2x square plus 4 at 2, 0. Your point is 2, 0. Okay. Next question. Check whether conditions of Rolle's theorem. Check whether conditions of Rolle's theorem are satisfied by the following function or not. Check whether conditions of Rolle's theorem are satisfied by the following function or not. First one, f of x equal to ब्रैकेट में लिखो x minus 1 ब्रैकेट क्लोज into again in bracket x minus 2 bracket close again in bracket x minus 3. I repeat, f of x equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, where x belongs to close interval 1, 3. X belongs to close interval 1, 3. Second, f of x equal to e raised to minus x, e raised to minus x into sin x, where x belongs to close interval 0, pi. Third one, test whether function is increasing or decreasing. Test whether function is increasing or decreasing. First one,
f of x equal to x minus 1 by x. F of x equal to x minus 1 by x, where x belongs to R and x is not equal to 0. Second, f of x equal to 7 by x minus 3, where x belongs to R, x not equal to 0. Start solving. ओके कार्तिक, हेलो मिस। हाँ मिस वो एफ और जी वाले टाइप का क्वेश्चन नहीं करो, थोड़ा बताओ ना। व्हाट हैपेंड? अच्छा लास्ट टाइम का, हाँ मिस करते हैं डिस्कस। हाँ, ओके तो सबने क्वेश्चन नोट कर लिया है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। एंड कल का क्वेश्चन था, यस, क्वेश्चन नंबर 6 किया किसी ने? Anyone? If f and g are two increasing function, then what can you say about g of f? Okay, so look at here. See, there are two functions f and g. दोनों मुझे इंक्रीजिंग दिया हुआ है, बराबर। f and g are increasing. That means if x1 is less than x2, then f of x1 less than f of x2. एंड अगर मैंने g अप्लाई किया तो वो भी मुझे g of x1 लेस देन g of x2 मिलेगा, करेक्ट, बाय डेफिनेशन। ओके, अब मुझे चेक क्या करना है कि g of f मेरा क्या फॉलो करेगा, ये मुझे चेक करना है कि वेदर दिस इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर दोनों नहीं है, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ g of x क्या होता है? दिस इज इक्वल टू g of f of x. Okay, now see, अब suppose I'm taking f of x1 is less than f of x2. Suppose ये मेरा a1 है and this is a2. a1 is less than a2 now. अब इस पे तुम g अप्लाई करो, ठीक है। सिंस g इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो तुम इस पे g फंक्शन अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? g of a1 is less than g of a2, बराबर। Now replace this a1 and a2 by f of x1 and f of x2. So g of f of x1 is less than g of f of x2. Okay, अभी ये दो इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2. When f of x1 is less than f of x2, and here this implies g of f of x1 is less than g of f of x2. Look at this star. For x1 less than x2,
g of f of x1 is less than g of f of x2. That means g of f x1 is less than g of f x2 and therefore g of f is increasing. समझा क्या किया? तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करना है फंक्शन पे. क्लियर? Now can you solve for next question? If f and g are two decreasing function, तो g of f मेरा क्या आएगा? Increasing और decreasing? Same way से solve करो. If f and g are decreasing, तब बताओ क्या आएगा? Yes. Decreasing के लिए क्या मिला? किया solve? मिस 1 मिनट बस होना. सेम प्रोसेस अप्लाई करो. मैम g of f x1 greater than g of f of x2. हाँ मतलब इंक्रीजिंग आया या डिक्रीजिंग आया? मैम x1 greater than x2 मैं ये f1 g के फंक्शन के टाइम पे नहीं थी मैम, को समझा नहीं है. ये वाला नहीं समझ आया? नहीं. अच्छा सी मैं बताती हूँ वापस. सी एफ एंड जी मुझे दो इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है एंड मुझे जी ऑफ एफ के लिए x1 कंक्लूजन फाइंड आउट करना है. मैम ठीक है, आपने x1 लेस देन x2 क्यों लिया है? क्योंकि एफ एंड जी मेरा एफ एंड जी जो है वो दो इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन अप्लाई की है. अगर कोई फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होता है तो डेफिनेशन क्या आएगा कि x1 लेस देन x2 के लिए अगर तुमने फंक्शन अप्लाई किया तो वो सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा. ओके ये मैम, मेरा समझा. डेफिनेशन है. करेक्ट. तो मैंने एफ एंड जी दोनों के लिए डेफिनेशन पहले अप्लाई किया. देन इसके बाद मेरा डेफिनेशन क्या आएगा जी ऑफ एफ का? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. करेक्ट. अब मुझे जी के अंदर एफ ऑफ एक्स रन करना है तो वो कैसे करेंगे? सिंस वी नो दैट एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2, सपोज माय एफ ऑफ x1 इज a1 एंड एफ ऑफ x2 इज a2. ठीक है. नाउ a1 इज लेस देन a2. अब मुझे इस पे g अप्लाई करना है. सिंस वी नो दैट g इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर मैंने g इस पे अप्लाई किया तो सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा. करेक्ट. सो g ऑफ a1 इज लेस देन g ऑफ a2. मैंने वापस से a1 a2 रीसब्स्टिट्यूट किया है. ओके. नाउ g ऑफ f ऑफ x1 इज लेस देन g ऑफ f ऑफ x2. x1 लेस देन x2 ये इंप्लाई कर रहा है. दैट मीन्स माय g ऑफ f इज इंक्रीजिंग. समझा? हाँ मैम, तो नहीं अप्लाई करो सेकंड वाला डिक्रीजिंग आ रहा है. पक्का? हाँ मिस, वो x1 ग्रेटर x1 देन x2 लिया तो. ओके. इस x1 इज लेस देन x2 के लिए वो g x1 of is f less x1 than ज्यादा आ रहा है. x2. This implies f and g are two decreasing function. f of x1 is greater than f of x2 and g of x1 is greater than g of x2. मिस x2 लेस देन x1 भी ले सकते हैं ना? हाँ, ये मुझे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, वो तुम कुछ मिस भी तो ले सकते. फिर f of x1 तो लेस देन हो जाएगा ना f of x2 से?
अगर तुमने ऐसे लिया कि x2 is less than x1, then तो f of x2 x2 is greater greater than than f of x1. हाँ मिस चलेगा। ये दो सिर्फ पॉइंट है, ये नहीं लेना है, a b ले लो। a is less than b, so f of a greater than f of b, g of a greater than g of b, ये हो गया मेरा डेफिनेशन। देन इसके बाद मुझे g of f of x के लिए फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सिंस आई नो दैट f of a is greater than f of b, तो अगर मैंने इस पे g अप्लाई किया तो g मेरा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मेरा इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। सो g of f of a इज लेस देन g of f of b मिलेगा, ये समझा? हाँ मिस। हाँ, क्योंकि g मेरा जो है डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज होगा। तो फाइनली मुझे क्या मिला, फॉर a लेस देन b, ये मेरा हो गया g of f of a लेस देन g of f of b। अब बताओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? यस, डिक्रीजिंग कैसे? मीन्स वो लेस See देन these two equation. For a less than b, g of f of a is also less than g of f of b. नहीं मिस इंक्रीजिंग है फिर वो सेम वो आ रहा समझा? है। हाँ, हाँ मिस। तो इनइक्वलिटी पे ध्यान दो, प्रॉपरली एनालाइज करके ही अपना कंक्लूजन बताओ, ठीक है? मिस ये थर्ड स्टेप से फिर से बताओ ना, ये थर्ड स्टेप f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ b। हाँ वहां यहाँ से, अच्छा सी हमने पहले यहाँ से मुझे क्या मिला, f of a is greater than f of b, मैंने हाँ सिर्फ मिस ये वो वापस समझा। से लिखा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। सो नाउ अभी सपोज कि तुम इसको एक पॉइंट कंसिडर कर लो कि ये दो वापस से मेरे एक पॉइंट है, अगर f ऑफ a और f ऑफ b नहीं रखना है तो सपोज ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ठीक है। सो इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 और मुझे इस पे g फंक्शन अप्लाई करना है, यू नो दैट g इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो मेरा इनइक्वलिटी चेंज होगा जब मैं g फंक्शन अप्लाई करूंगी, बराबर। हाँ सो मैंने हाँ वही किया है, निगेटिव है ना g इसमें। ऑफ f ऑफ a इज लेस देन g ऑफ f ऑफ b। ओके मिस समझा। तो दोनों का आंसर ए आएगा in both the condition f of a g of f is increasing। हेलो मैम, वो एक बार वो पेज दिखाओ ना। कौन सा, जो अभी सॉल्व किया? हाँ मैम चैट बॉक्स में देखो ना। क्वेश्चन नंबर 8। ओह माय गॉड, इतने सारे क्या है ये? हेलो मिस। हम्म मिस वही 8th वाला कैसे करेंगे? बता रही हूँ, एक मिनट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन, चेतन ये अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। गो टू नेक्स्ट वन, चेतन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। मिस वो करेक्ट आया है? 4x माइनस वाई, वेट मैं सॉल्व करके बताती हूँ। किसी ने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? Okay, 8th one is y is equal to x square e raised to minus x, then the interval in which y increase with respect to x is, okay, so differentiate किया, y is equal to x square e raised to minus x,
differentiate this with respect to x. This is equal to x square, derivative of e raised to minus x is e raised to minus x into minus 1 plus e raised to minus x, derivative of x square is 2x, e raised to minus x कॉमन ले लो, 2x minus x square, करेक्ट. नाउ अभी हमें क्या बोला है कि हमें इंटरवल फाइंड करना है x का सच दैट माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग. दैट मीन्स इसको ग्रेटर देन 0 लेना है. सो 2x minus x square divided by e raised to x greater than 0. e raised to x तो मेरा हमेशा greater than 0 ही आएगा, बराबर. So therefore 2x minus x square is greater than 0. अभी मैम इसको x सोल्व लेस करो. देन 2 x लेस देन 2 x less than 2. yes. तो मैम इंटरवल तो इसमें से देखो कौन सा इंटरवल मैच हो रहा है. x किस y किस पे इंक्रीजिंग आएगा चारों में से? डी ऑप्शन है. डी पे. जरूरी नहीं है कि हमें टोटल पूरा इंटरवल दिया हो. कभी कभी हमें ऐसा इंटरवल दिया होता है जिसपे हमें सिर्फ बताना होता है कि इस पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, तो तुम्हें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. हाँ. हेलो मिस. हाँ अमन, मिल गया तेरे क्वेश्चन का आंसर? हाँ मिस, 9th का आंसर क्या मिला? 9th का 9th का ए आएगा. मैम 9 का आंसर ग्रेटर देन -1 आ रहा है. तो 0 इंक्लूड होएगा ना. एक और आया होगा, चेक करो. log of 1 plus x minus 2x upon 1 plus x. सो डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा 1 upon 1 plus x minus 1 plus x into 2 minus 2x divided by 1 plus x square, which is equal to 1 plus x minus 2x plus 2 minus 2x divided by 1 plus x square. मैम 2 plus x square है. क्वेश्चन में 2x upon 2 plus x ये है. 2 ओके सॉरी, 2 plus x तो ये हो जाएगा 2 plus x 4 plus 4x 4 plus 4x यहाँ पे मेरा 2x बचेगा, है ना. मैम 4 plus 2x होगा मैम ना. सिर्फ 4 ही बचेगा. 2x upon 2 plus x 2 plus x 2 minus then 4 plus 4x minus 2x. So 4x में 2x आएगा ना. what happened? क्या गलत हो प्लस गया? x इंटू 4x नहीं आएगा, 2x आएगा. 2x plus 4 minus 2x 2x plus 4. 2x तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 आएगा. ओके ऐसा कुछ मिला. 1 upon 1 plus x minus 4 upon 2 plus x square तो हो जाएगा 2 plus x square minus 4 into 1 plus x divided by 1 plus x 2 plus x square. तो मुझे क्या चाहिए? इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए. 2 plus x square मेरा हमेशा इंक्रीजिंग आएगा तो इसको यहाँ पे लेके जा सकते हो. दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 4 plus x square plus 4x minus
4x minus 4 divided by 1 plus x 2 plus greater than 0, which is equal to, this implies x square upon 1 plus x 2 plus x square is greater than 0. Now see, your x square is greater than 0, 2 plus x square is greater than 0. तो होल फंक्शन मेरा ग्रेटर देन 0 होने के लिए मुझे 1 plus x ग्रेटर देन 0 चाहिए. दैट मीन्स माइनस करो 1 बोथ साइड, x ग्रेटर देन -1. तो दैट मीन्स -1 से लेके पूरा इंटरवल आएगा मेरा इंफिनिटी तक. बराबर. नाउ अभी मुझे इसमें से चूज करना है कि कौन से इंटरवल में मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग आएगा. चेक करो. सी जरूरी नहीं है हर बार तुम्हें वो सारे पॉइंट दिए हो जिसपे वैल्यू इंक्रीजिंग आए. कभी कभी इंटरवल भी दिया होता है, स्मॉल इंटरवल, उसमें तुम्हें पता करना होता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो जिसके लिए भी सेटिस्फाई करे वो ऑप्शन चूज करो. ठीक है. इवन तुम ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अब f डैश ऑफ x फाइंड आउट करने के बाद b और c चेक करो. कोई दो माइनस वैल्यू लेके सब्स्टिट्यूट करके देखो, -1 ही सब्स्टिट्यूट करके देखो. अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा. अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं दिया होता, एक और वैल्यू दी होती, तो वो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना. यू कैन डू इट इन दिस वे. ओके. मिस, वो कंडीशन सेटिस्फाइड आया है दोनों का. कौन सा? वो वाला कंडीशन सेटिस्फाइड, वो चेक द वेदर कंडीशन. ओके ओके ओके. या नाउ बैक टू योर क्वेश्चंस. ओके, बाकी लोग आगे के एमसीक्यू सॉल्व करो, तब तक हम ये देखते हैं. यस चेतन, दोनों सेटिस्फाई आ गए? यस मिस. ओके. एंड फर्स्ट का आंसर क्या मिला था? टेल मी. फर्स्ट का आंसर M14 मिला. M14. ओके. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. Then equation of a tangent is equal to 4x minus y minus 8 equals to 0. 4x minus y minus 8 equals to 0. ओके. M2 जिसने भी सॉल्व किया है. एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. equation of a normal x plus 4y minus 2 equals to 0. x plus 4y minus 2 equal to 0. हाँ. ओके ठीक है, मैं चेक करती हूँ. तब तक ये बाकी के सॉल्व करो. ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो. हर्ष सिंह. हेलो मिस. हाँ, कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? एमसीक्यू और दिस क्वेश्चंस? एमसीक्यू. एमसीक्यू. ओके. आदित्य. दोनों आदित्य. अबिन. हेलो. कौन से क्वेश्चंस कर रहे हो? मिस एमसीक्यू. अच्छा, सॉल्व करो आगे. हाँ. अखिल. यस मिस. अखिल. हाँ, एमसीक्यू कर रहा है या फिर क्वेश्चंस? एमसीक्यूज. ओके. कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? अभी 10th वाला कर रहा हूँ. वो ये f डैश ऑफ x ढूंढ लिया. ओके ओके, आगे करो. अंजलि. हाँ मिस.
कौन से क्वेश्चंस? एमसीक्यू कर रही हूँ मिस। ओके। आयुष तांबे। हेलो मिस। आयुष तांबे। अच्छा ओके मिस ओके। भावेश। चैतन्य। यस मैम। कौन से क्वेश्चंस? एमसीक्यू 10th वाला ओके से स्टार्ट कर। ओके ओके। गणेश। So I'm assuming that you guys are not solving any of these questions. काजल। यस मिस। कौन से क्वेश्चंस? मिस एमसीक्यूज का रुको तुम बता मिस। एमसीक्यूज का ये क्वेश्चन cos pi by x is increasing। ओके ओके। डिफरेंशिएट किया? मानसी। मानसी पाटिल। यस मिस। कौन सा क्वेश्चन? मिस वो 10th वाला। एमसीक्यू कर रहे हो? Okay. हाँ मिस। मृणाली। यस। सिमरन। हेलो मिस। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? मिस क्वेश्चन 10 एमसीक्यू। ओके। कैसे स्टार्ट किया? डिफरेंशिएट किया। ओके। क्या मिला? एफ डैश ऑफ एक्स पाई बाय एक्स स्क्वायर साइन पाई बाय एक्स। ओके। ग्रेटर देन 0 लो एंड कंडीशंस फाइंड करो। हाँ यस। सूरज। यस मिस। क्या चल रहा है? हाँ मिस एमसीक्यू चालू है। कौन सा? मिस वो 10th वन अभी चालू किया। उसके पहले क्या कर लिए? हाँ मिस। ओके। स्नेहा। हेलो मिस। हाँ मिस एमसीक्यू कर रही हूँ 10th वन। 9th वन किया? हाँ। यस। स्नेहा 9th वन कर लिया? हाँ मिस किया। कैन यू एक्सप्लेन मी? मिस एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएट किया। और फिर एफ डैश ऑफ एक्स किया। क्या मिला डैश ऑफ एक्स? एफ डैश ऑफ एक्स अभी निकाल रही हूँ मैं। सो क्वेश्चन नंबर 9th नहीं हुआ है, करेक्ट? नहीं। क्वेश्चन नंबर 8th किया है? हाँ क्वेश्चन नंबर 8 हाँ किया है। ओके। क्या मिला? इसका डेरिवेटिव क्या आया? मिस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू एक्स। 2x अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू एक्स। हाँ, फिर इसके बाद वो ग्रेटर देन 0 है। फिर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। फिर ऑप्शन डी आंसर है 0,2।
2x अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ अपॉन ई रेज टू एक्स। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे आ गया? नहीं 2x अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x ग्रेटर देन 0। यस। ओके, सो x इंटरवल कैसे मिला हमें? इसके आगे क्या किया? मिस इतना तो मैंने ही सॉल्व कर दिया था। हाँ इसके बाद क्या किया? मिस वो इंटरवल निकाला था। इंटरवल? हाँ, कैसे निकाला वही पूछ रही हूँ ना मैं। जब तक एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है दूसरे पे जंप मत करो। ओके मिस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सॉल्व दिस। शायद ओके, इंटरवल क्या मिला? एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन? सॉरी 11th वाला बोल रहा हूँ, सॉरी मिस। 10th का सी आया। 10th का सी पक्का? हाँ। कैसे किया बता मेरे को। f ऑफ x, बताओ मिस। हाँ रुक, f ऑफ x इक्वल टू cos पाई बाय x। मिस तो डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन पाई बाय x, फिर चेन रूल लगाया, माइनस मिला ना? हाँ पाई बाय एक्स स्क्वायर साइन पाई बाय x बराबर। हाँ यही मिला। ओके, तो मुझे फंक्शन ग्रेटर चाहिए, इसके लिए मुझे वैल्यूज चाहिए, करेक्ट? सो ये तो मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, पाई बाय एक्स स्क्वायर। तो मुझे साइन पाई बाय x जो है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। हाँ मिस। ओके, तो मुझे पता है कि साइन मेरा ग्रेटर का। अच्छा तूने कैसे किया वो बता। मिस मैंने वही किया, मतलब पाई बाय एक्स को मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लिया, 0 to 2। हाँ 0 to पाई। ओके, हाँ so सॉरी। my pi by x is greater than 0 between 0 to पाई बराबर। हाँ मतलब अब इसको मैं जनरलाइज करूंगी तो मेरा फंक्शन अभी कहाँ पे ग्रेटर होता है? फर्स्ट तो 0 to पाई, देन इसके बाद वापस 2 पाई to 3 पाई बराबर, हाँ देन 4 पाई to 5 पाई। ये मेरा जनरलाइजेशन है। हाँ मिस वही जनरलाइज किया फिर। हाँ तो फिर पाई सपोज से यहाँ पे अगर तूने n पाई लिया, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा? जनरलाइज करेगा तो 2n पाई प्लस पाई बराबर। देन हाँ। इसके बाद हमें क्या करना है? मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। एक रेसिप्रोकल, यस। सो ये हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल लेगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बराबर। हाँ सी 2 is greater than 1। अब रेसिप्रोकल लो। हाँ 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 1 by 2 is greater than 1 नहीं ना? हाँ समझा मिस। अब बताओ इंटरवल क्या मिला? मिस सी मिला 1/2 2n 1/2n+2 कॉमा 1/2n+1। 1/2n+2 कॉमा 1/2n+1। मिस क्योंकि उसमें ये पूरा थोड़ी दिया है मिस, उसमें भी वो पहले वाले सम के जैसे ही बीच में का दे दिया। हेलो हाँ एक मिनट। इज ग्रेटर देन। हेलो मैम। हाँ हूँ मैं, यहीं पे हूँ।
मुझे कुछ अलग ही आ रहा है। तुझे क्या मिला बता? 1/2n plus 1 हम्म लेस देन फिर x फिर वो ग्रेटर देन 1/2n। बराबर, यही आएगा। अच्छा सी, इंटरवल क्या मिलेगा? यहाँ तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया था ना। 2n पाई इज लेस दिस इज लेस देन 2n पाई प्लस पाई। देन इसके बाद इसके आगे रेसिप्रोकल लोगे तो क्या मिलेगा? 2n पाई इज लेस देन दिस इज लेस देन 2n पाई 2n plus 1 पाई। ओके, टेक रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 1/2n पाई ग्रेटर देन x बाय पाई इज ग्रेटर देन 1/2n plus 1 पाई। तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर x lies between 1/2n plus 1. Take this. तो मिस सिमिलर वैसे ही मिल रहा था कुछ ऑप्शन में, तो वो टिक कर। Yes. क्या मिस? किसके इधर टीवी का साउंड आ रहा है? सुमित। अच्छा मैं सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, डू यू गाइज नो इवन एंड ऑड फंक्शन? हाँ मिस। कैन यू एक्सप्लेन इट? ऑड आएगा। ओके, नाउ सॉल्व दिस। मिस उसका बी है क्या? इसका आंसर हाँ मिस मिला वो तुझे? ऑड मिला? मिस मिला नहीं, मतलब वो लास्ट वाला ऑप्शन देखा उसमें डिक्रीजिंग था, तो फिर तो वो तो डिक्रीजिंग तो हो नहीं सकता है। तो फिर बाकी तीन में देखा दो इवन है, दो इवन भी हो नहीं सकता है, तो बचा बी वाला, तो उसको टिक कर दिया। गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। नाउ ट्राई टू सॉल्व। ओके, into अब सॉल्व करो। मैम ऐसे ही डेरिवेट करके कैसे नहीं समझेगा मैम? मतलब ऐसे रैशनलाइज ही क्यों करना है? रैश अभी हमको ये ना डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि ये मेरा फंक्शन इवन है या ऑड है। मुझे इसको लेकिन पता करना है कि इवन है या ऑड है। तो ऐसे करोगे तो आगे तुम्हें कुछ आंसर मिलेगा जिससे मुझे पता चलेगा ये इवन है या ऑड है। ओके, ये मैंने किया है सॉल्व, इसलिए मैंने हिंट दिया। जरूरी नहीं है सारे सम इसी तरीके से हो। ऑड आ रहा। मिला? हाँ ओके
मुस्कान क्या मिला? मैम और ओके, तो कर लिया सबने सॉल्व? डाउट है किसी को? So the answer is B, odd and increasing. Go for 12th one. मिस वो टेस्ट वेदर फंक्शन इंक्रीजिंग दोनों इंक्रीजिंग आया। दोनों इंक्रीजिंग आया। हाँ। अच्छा ये बता सेकंड वन कैसे किया? मिस वो u बाई वी डी बाई डी एक्स यू बाई वी का फॉर्मूला यूज किया। क्यों? अरे 1/x का डेरिवेटिव हमें पता है ना। हाँ। d बाई डी एक्स ऑफ 1/x इज 7 इंटू सी। हाँ मिस वो गलत है, रुको मैं करता हूँ। वैसे अगर तूने u बाई वी प्रॉपरली यूज किया है तो भी आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो चेक कर अपना आंसर एक बार वापस। ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 7/x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3। 7 इज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव मुझे 1/x का लेना है माइनस 0। See, my 12th one is, if the function f of x curve is given, attain its maximum and minimum at p and q. That means p पे maximum value attain करेगा and q पे minimum value, ठीक है, respectively, such that p square equal to q. Then a मुझे find out करना है। Miss, x square is a positive. Yes, x square is positive, but इसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिला? -7/x square मिला ना? हाँ मिस। हाँ, सो x स्क्वायर मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, एंड ये -7 तो हमेशा मेरा -7 ही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ओके, नाउ -1 डिवाइडेड बाय +1, ये मुझे पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो ये वैल्यू मुझे हमेशा नेगेटिव मिलेगा, लेस देन 0। तो नहीं, ये वो इंक्रीजिंग नहीं होगा। हाँ, तो डिक्रीजिंग होगा, करेक्ट। ओके, नाउ वेट, आई विल गिव यू मोर क्वेश्चन, one more question, solve this। लिखो क्वेश्चन लिखो। मिस 12th वाला कैसे करेंगे? हाँ बता रही हूँ, एक मिनट है, इसको क्वेश्चन बता दूं। राइट डाउन, अ पार्टिकल मूव्स under the law S equal to t cube minus 4t square minus 5t. Find displacement and velocity of particle when acceleration is 4 unit. A particle moves under the law S equal to t cube minus 4t square minus 5t. Find displacement and velocity of particle when acceleration is
4 यूनिट। इन टेस्ट वेलोसिटी क्या होता है? ds/dt। एक्सेलरेशन इज dv/dt, दैट इज d²s/dt²। अब सॉल्व करो, फाइंड आउट ds/dt, देन dv/dt, एंड देन इसके बाद फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वेलोसिटी फाइंड करो। Okay, now back to 12th one. See, use this condition, maximum and minimum. This curve attains its maximum and minimum at P and Q. मतलब क्या? मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद एक P है एक Q है। हाँ, मतलब कि P and Q पे मेरा डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा। हाँ बराबर, दैट इज f' of p equal to 0, f'